اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں ہر طرح کی غلامی اللہ تعالیٰ کی، اپنے آپ کو مکمل خدا کے حوالے کر دینا، اس عمل کو آسان لفظوں میں عبادت کہا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی وجہ سے بے سکونی، پریشانیاں، مشکلات۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ آیت یاد کر لیں قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، بھائی اپنا خیال رکھا کرو۔ کہتے ہیں نا آج کل ایک ڈائلاگ ہے، کہیں بھی کوئی رخصت ہو رہا ہو، جا رہا ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں اس میں ایک لفظ اضافہ کر دیتا ہوں، اپنے خرچے پہ، کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے میں، کیونکہ آج کسی کو مشورہ دو نا تو وہ بعد میں پیسے مانگنے آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا اس لیے۔ لیکن جب آپ کسی سے کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا، تو کیوں کہتے ہیں یہ؟ کہ بعض دفعہ انسان خود اپنا خیال نہیں رکھتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وہ۔ ہم نے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو ساری زندگی لوگوں کا علاج کرتے رہے، اپنے آپ کو بھول گئے، جس بیماری کے اسپیشلسٹ تھے اسی میں ان کی موت واقع ہوئی، اپنا خیال نہیں رکھا انہوں نے۔ لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول گئے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ دوسروں کو برائیوں سے روکتے روکتے خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، بعض دفعہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اپنے آپ سے۔ بہت زیادہ پیسہ آیا، قرآن نے کہا اعتدال سے خرچ کرو۔ آپ کی طبیعت میں اسراف تھا، آپ اڑا رہے ہو، پیسہ اڑا رہے ہو، یہ بھول گئے کہ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کل آپ پر حالات بھی آ سکتے ہیں، اور وہی ہوا، آپ پہ حالات آئے تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ یار تم نے لوگوں کا خیال کیا مگر اپنے آپ کو تم بھول گئے، اپنا خود کو بھول گئے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تبھی تو قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، اتنے کنجوس بھی مت بنو، اور ایسا اڑانا بھی مت شروع کرو کہ کل لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرتے کرتے یا کسی بھی وجہ سے، بعض دفعہ خیال نہیں کر رہا، ویسے ہی کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے آپ کو بھول جائے؟ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ کسی اور سے بھی اگر اس کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو انسان جتنا خیر خواہ اپنا ہے، جتنا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اتنا کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اب آپ بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف، برلے درجے کا احمق کون ہوگا جو اپنے سب سے محبوب ہی کو بھول جائے، جو خود اس کا اپنا آپ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، اس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو واقعی بھول چکے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں تو سب سے پہلے یاد رہتا ہے کہ میں ہوں۔ جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے تو سب سے زیادہ اسپیڈ اپنے آپ کی ہوتی ہے یا کسی اور کی ہوتی ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ اپنے آپ کی اسپیڈ سب سے، تو اپنے آپ کو تو انسان کیا کرتا ہے؟ یاد رکھا ہوا ہے اس نے۔ تو خوب سمجھ لیں، قرآن میں جو اللہ نے کہا نا کہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، کب بھولتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں ابھی۔ تو وہاں بھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو بھول جاتے ہیں، یہ کوئی بھی، یہ تو کتے بلی بھی نہیں بھولتے۔ خواہشات کی غلامی آپ کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے، آپ خواہشات کی غلامی میں بھول جاتے ہو کہ اس خواہش کو پورا کرنے سے میرا نقصان ہو رہا ہے، تو اپنا آپ تو بھول گئے نا آپ۔ جب شادیوں میں کھانا کھلا اور سب سے زیادہ اسپیڈ آپ کی تھی، اس کا مطلب آپ اپنا نفع بھول گئے کہ اس سے میری عزت جا رہی ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، اتنا کھانے سے صحت کو کوئی فائدہ، نقصان ہی ہے۔ جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کھا لیا کھائے جا رہے ہیں تو آپ اس وقت حقیقت دیکھنے میں تو آپ نے اپنے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، ایک نوالا بھی نہیں چھوڑ رہے آپ، لیکن حقیقت میں آپ اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ کیوں بھول گئے ہو؟ آپ اس کے سائیڈ افیکٹ پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ مجھے قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بات کھانے پہ آئی ہے، دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھو ہمارے نا سلام دعا ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، علماء سے بھی ہے، ہر طبقے سے ہوتی ہے، اور میڈیکل سائنس میں مجھے ویسے ہی ذاتی دلچسپی ہے۔ اللہ نے اپنی تعریفیں بہت کی ہیں تاکہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں ان کی عقل ٹھکانے آئے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، کیا مزے کی آیت ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے۔ ڈارون کہتا ہے یہ خود ہی پھٹتے ہیں، یہ
کروڑوں اربوں سال میں نا بیج خود بخود ڈیزائن ہو گیا ہے. غصہ ابھی میں نے ڈارون ہوتا نا چماٹ لگا, میرا بولا نہیں جا رہا مجھ سے, ڈارون کی بات پہ رد کرنے کے لیے بھی نہیں بولا جا رہا. تو شکر ہے بھی ڈارون بیان میں ہے نہیں. کتنی بڑی پھینکی ہے یار, خدا کا غضب اور اس کے قہر سے ڈرتے نہیں ہیں. اور ہمارے جو سائنس پڑھنے والے طالب علم ہیں وہ ایسا ہی مان لے آئے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں سائنس عقل کے خلاف بات نہیں مانتی, بالکل صحیح ہے, عقل کے خلاف کوئی بات سائنس میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن مانا تو ایسی بے عقلی کی بات مان لی کہ جو اسباب کی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. کتنی بے عقلی کی بات ہے. تبھی تو اللہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, کروڑوں اربوں سال میں ایک بیج ارتقا کرتے کرتے ہر چیز میں ایوالو, ہر چیز ایوالو ہوئی ہے نا, سائنسدان کہتے ایوالو ہوتے 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 وہ کیوں ادھر کو ایوالو ہو رہی ہے, وہ تنزل کی طرف کیوں نہیں جا رہی, وہ ترقی کی راہ پہ گامزن کیوں ہے, وہ ایوالو ہوتے ہوتے ایسی بن گئی ہے کہ زمین میں آپ کچھ بھی ڈالو زمین اسے کھا کے ختم. اور بیج ڈال رہے ہو, گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے تھوڑے دنوں میں وہ بیج پھٹ جاتا ہے, گھٹلی پھٹ جاتی ہے, اور اس گھٹلی میں ایک چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے. یار یہ کس نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد, اللہ کہتے ہیں ایک پانی, ایک گوبر, ایک مٹی, کیا کیا پیدا ہو رہا ہے اس سے. پھر کیسا عجیب منظر ہے, پودا آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے, ایک وقت کے بعد تناور درخت بنتا ہے. چلو یار اتفاق سے ایسا ہو گیا. پھر اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں تتلیوں کو, مکھیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. یہ اٹریکشن خود بلا وجہ نہیں ہو رہی, اس اٹریکشن میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے. تتلیوں کو بھی پتہ نہیں ہو رہا ہم ان پھولوں پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں. بھائی تم جو ان پھولوں پہ بیٹھ رہی ہو نا, تمہیں آم بنانے سے کوئی دلچسپی ہے نہیں, اللہ کو یہ پتا ہے. مکوڑوں کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پبلک آم کھائے. کیڑے مکوڑوں کو دلچسپی ہے, ہوا جب چلتی ہے پھولوں کے ریزوں کو ملا دیتی ہے, نر مادہ پھولوں کا ملاپ کرتی ہے, ہوا کو اس سے کوئی دلچسپی ہے کہ آم پیدا ہو نہ, یہ دلچسپی صرف خدا کو ہے. لہذا اس نے کیا کیا, اس نے کہا جب تک مکھیاں, تتلیاں, کیڑے مکوڑے پھولوں کے جو اوپر وہ ہوتی ہے نا ریزے ہوتے ہیں, سائنس کی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, جب تک ان کو ملائیں گے نہیں آپس میں تو نر مادہ کا ملاپ نہیں ہوگا اور پھل پیدا نہیں ہوگا. اب دو طریقے تھے, یا تو اللہ کیڑے مکوڑوں کو, تتلیوں کو اور سارے سب کو بلا کے سمجھاتا کہ دیکھو آم پیدا کرنا ہے, تم نے کیا کرنا ہے, نر اور مادہ کو اپنی پاؤں کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ملا دینا. اللہ میاں نے کرنا, نہیں بھائی ان کی تو کھوپڑی سمجھنے کے لیے ہے ہی نہیں. اللہ میاں نے خود ایک ایسا کام کر دیا, بیج میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ جب یہ درخت بنے گا ایک ٹائم کے بعد جا کے اس میں پھول پیدا ہوگا. وہ پھول خود بخود تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو, اس کی خوشبو بھی اور اس کا کلر بھی اپنی طرف بولو اٹریکٹ کرے گا. پھول ویسے ہی پیدا ہوتا ہے, اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام. تتلیاں پھولوں پہ بیٹھ رہی ہوتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کیوں بیٹھ رہے ہیں. قدرت ان سے کام لے رہی ہے کہ تم ایک پھول پہ بیٹھ کے اڑ کے دوسرے پھول پہ جاؤ گی تو نر مادہ پھولوں کا آپس میں کیا ہو جائے گا, ملاپ, اور اس سے پھر پیدا ہوگا آم. سمجھتے نہیں ہو بات کو. پھر جب آم سے وہ درخت بھر جاتا ہے, پھر ہم جب آم کاٹتے ہیں وہی گھٹلی جو ہم نے زمین میں دبائی تھی اس جیسی سینکڑوں گھٹلیاں پیدا ہو جاتی. اس حقیقت کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ یہ آٹومیٹیکلی ہوا ہے, اس سے بڑا گدھا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور پھر اللہ کا حق بنتا ہے کہ سزا کے طور پر اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دے. تو آپ کی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی, اور آپ اس بیس پہ کہ آپ کو یونیورسٹیوں میں ڈارون کا نظریہ پڑھایا جا رہا ہے, تو یونیورسٹیوں میں پڑھانے کی بیس پہ اللہ اس سے متاثر نہیں ہوگا. اللہ کہے گا یہ اپنی افلاطونیاں بقراتیاں یہ وہیں رکھ کے آؤ, میرے سامنے یہ عذر بولو نہیں چلے گا. مثال سے بات, فار ایگزامپل ہوتا ہے نا, مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کہیں صحرا میں قحط میں پڑے ہوئے تھے, کچھ بھی انتظام نہیں تھا, کچھ بھی انتظام نہیں تھا. اچھا آپ تھے اپنے ابا کے نافرمان, کبھی ابا کا خیال نہیں کیا آپ نے, ابا آپ کو سمجھاتا رہا, لیکن آپ کو یہی کہ ایسا ابا کہاں سے لبا, نہیں مانتے تھے ابا کو. آپ کو ضرورت پڑ گئی, کہیں صحرا میں گم ہو گئے, کہیں کچھ بھی ہو گیا, اب ابا کو موقع ملا کہ اب میں اپنے بیٹے کی کروں گا خدمت, چھپ کے کروں گا, بعد میں بتاؤں گا یہ میں نے کیا ہے, تو پھر میرا بیٹا مجھے
मानेगा। आपने क्या किया, आपने जब देखा ना बेटा सहरा पर कहीं से इत्तला मिल गई, मिसालें तो फर्जी होती है ना, कुछ भी फर्ज किया जा सकता है। अब लोग मिसालों में कीड़े निकाल रहे होते हैं बैठ के, अबे मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब्बा ने चुपके से ले जाके सहरा में आपके लिए, आप अब्बा को बताता सुबह इसको पराठे चाहिए, अगर मेरे अब्बा होते तो पराठे ले जाके रख देते। सुबह जब आपकी आंख खुली तो पराठा रखा हुआ है, चाय रखी हुई है, हाफ फ्राई अंडे रखे हुए हैं। आपने कहा यार कोई है जिसको पता है कि मुझे नाश्ते में क्या चाहिए। बैठे रहे, थोड़ी देर में प्यास लगी, आपने देखा कहीं पानी का केन चुपके से रख के जा रहे हैं, अब्बा दिखा नहीं रहे, आखिर में सरप्राइज देंगे। आपने देखा अरे पानी भी मिल गया थोड़ी देर में। दोपहर उठे तो दाल चावल कच्चे प्याज के साथ, जो मैं खाने में हमेशा वो मिसालें देता हूँ जो मुझे पसंद होती हैं, दाल चावल कच्चे प्याज के साथ, कच 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 के खाओ ना, बड़ा मजा आता है। अच्छा, लोग जो मनफी सोचते हैं ना उनको कीड़े ही निकालने होते हैं। मेरे बयान में कमेंट्स होते हैं, मुफ्ती साहब हम तफसीर के लेक्चर सुनने के लिए आते हैं, आपके दादी के किस्से सुनने के लिए नहीं आते। तो मैंने दादी को सुनाया ना, किसी ने लिखा अबे वो दादी का किस्सा, मैंने मेरी दादी के तो करोड़ों किस्से हैं, तो वो किस्सा सुनाया ना जिसका आपकी जिंदगी से ताल्लुक है। मैंने ये थोड़ी नहीं कहा मेरी दादी कब पैदा हुई, पहली सालगिरह उनकी कब थी, कब उनकी शादी हुई, टोटल कितने बच्चे हैं। अगर मैं ये बता रहा होता कि मेरी दादी ये सब, तो फिर आप कहते हैं अपनी दादी के किस्से सुना रहे हैं बैठ के। तो अब क्या है, रात को जनाब निहारी आ गई, कुछ भी इस तरह 6 दिन गुजर गए, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ। आपको तजस्सुस पैदा हुआ, यार ये क्या हो रहा है यार, मेरी हर बुनियादी जरूरत पूरी हो रही है, पानी भी मिल रहा है, देने वाला कौन है समझ में नहीं आ रहा। आप चूंकि साइंस जरूरत से ज्यादा पढ़ चुके थे, एक तो जरूरत की साइंस होती है वो हर एक को पढ़नी चाहिए, आप थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा, डार्विन से भी 2 हाथ आगे निकल गए थे आप, क्योंकि पाकिस्तानी मुल्हिद जो है ना वो डार्विन से 2 हाथ आगे हैं। डार्विन ने भी वो बातें नहीं की थी जो ये लोग डार्विन के खाते में डाल रहे हैं, वो भी खुदा को मानता था। अच्छा खैर, इनकार उसने किया था किसी और बेस पे, इस नजरिए की बेस पे नहीं किया था। और अक्सर साइंसदान खुदा को मानते हैं और ये कहते हैं साइंस में खुदा का सबूत नहीं मिलता। तो मैं भी ना वहां गया था ऑस्ट्रेलिया, वहां एक यूनिवर्सिटी में न्यूटन जिसने कहा था कि सेब सर पे गिरा था, तो मैं उस यूनिवर्सिटी में गया। उन लोगों ने क्या किया है, जो दरख्त सेब न्यूटन की खोपड़ी पे गिरा था ना, खोपड़ी नहीं तमीज से बात करनी चाहिए, न्यूटन है, न्यूटन के सर पे जो सेब गिरा था, खोपड़ी तो ऐसे ही बोल लेते हैं, तो वो वाला जो दरख्त है ना उससे क्लोनिंग करके एक दरख्त लगाया है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में। यानी ये जो दरख्त है ये वो दरख्त की औलादों में से है जो न्यूटन जिस दरख्त के नीचे लेटा था। तो मैंने वहां ऑस्ट्रेलिया में जाके व्लॉग बनाया है और उस दरख्त का सेब खाया भी है कि यार हमारी भी साइंस में निस्बत किसकी तरफ हो गई है, न्यूटन की तरफ, समझ रहे हो। तो वहां मैंने ये कहा है कि न्यूटन भी खुदा के वजूद का कायल था। समझते हो कि नहीं समझते? तो खामखा में फजूल कर दिए कि साइंस और खुदा के इनकार को एक साथ लाके खड़ा कर दिया। खैर, तो अब क्या हुआ, आपके अब्बा जो हैं, अच्छा अब आपके अब्बा देख रहे हैं कि मेरा बच्चा तफ्तीश करेगा कि यार ऐन वक्त पे मेरी जरूरत पूरी होना इसकी अलामत है, कोई बड़ा खैर ख्वाह है। लेकिन आपको था साइंस का हैजा, आपने क्या किया, आपने कहा यार देने वाला तो नजर आ नहीं रहा, जब आंख खुलती है कोई पानी का केन होता है, फलाना होता है, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस है कोई, ये क्या है रॉकेट साइंस। आप आए वापस अपने घर पे सहरा से, फिर आपने साइंसदानों को जमा किया कि बताओ यार एक बंदा एक सहरा में 1 हफ्ता या 1 महीना रहा, जो चीज जरूरी थी उसको उसी टाइम पे वो चीज मिल गई। सुबह नाश्ते में पराठा चाहिए था, पराठा आ गया, दोपहर दाल चावल चाहिए थे, दाल चावल आ गए, रात को उसको फॉर एग्जाम्पल निहारी चाहिए थी, निहारी आ गई, फलानी चीज चाहिए थी, शाम को चाय चाहिए थी, चाय आ गई, पानी के वक्त पानी आ गया, देने वाला नजर नहीं आया, तो इसमें साइंस क्या है। तो सर जोड़ के बैठ गए, उन्होंने कहा असल में करोड़ों अरबों साल में रेगिस्तान ने अपने आप को ऐसा डिजाइन किया है कि जो भूखा प्यासा वहां लेटेगा ना तो उसको जिस चीज की जरूरत होगी एन उसी वक्त पे वो जरूरत पूरी। इवॉल्व हुआ है, रेगिस्तान इवॉल्व हुआ है। आप कहोगे रेगिस्तान इवॉल्व हुआ, मैं कैसे इवॉल्व हो गया, मैं तो यानी मुझे देख के ही रेगिस्तान ने ये सारे काम शुरू कर दिए। तो जवाब में वो कहता है कि आप ही इवॉल्व हुए हो। तो आप जवाब में ये कहोगे कि मैं तो पैदा 20 साल पहले हुआ हूं, मैं करोड़ों साल पहले पैदा होता तो करोड़ों साल तक जिंदा रहता, मेरी बॉडी में तब्दीलियां आते आते ये होता कि मैं रेगिस्तान में होता और ये हो जाता। वो कहेगा करोड़ों साल से इवॉल्व जो हुए ना, तो वो जर्म्स, वो आपके स्पर्म में वो चीज कुछ भी फेंकनी पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी, कुछ भी फेंकता रहेगा। ये सब बातों का साइंसदानों पे भी असर होगा, उन तहकीकातों पे भी असर होगा, अब्बा पे इसका कोई असर नहीं होगा। जब अब्बा को पता चलेगा ना मेरा इनकार करके इसने
कुछ और कहानी घड़ ली है, अब्बा नहीं छोड़ेगा, अब्बा कहेगा अब तो एंड हो गया बेटा, अब तो नाफरमानी की, पहले मैं तुझे खिलाता था तो तू ये तावील करता था कि सबके लिए घर में पराठा बनता है, मैं अकेला थोड़ी हूँ। यही बच्चे कह रहे होते हैं ना, अब्बा कोई आपने मेरे पर अलग से थोड़ी खर्च किया है, सारे खा रहे हैं तो हमने भी खा लिए। अब्बा कहेंगे कि भाई अब्बा सारे बच्चे कर रहे होते हैं, लेकिन मुसीबत में लावारिस बाप ने नहीं छोड़ा, बल्कि मुसीबत में आप क्योंकि छोड़ देता मर जाते आप कहत से। हम इस कायनात में देखते हैं जिस चीज की हमें जरूरत है ना, वो जरूरत पूरी हो रही है, ये इर्तिका के नतीजे में नहीं हो सकता। बच्चा पैदा होता है, उसको ना पराठे चाहिए, ना चाय चाहिए, ना उसको चावल चाहिए, उसको दूध चाहिए, और गाय का नहीं, भैंस का नहीं, डब्बे का नहीं, खास दूध चाहिए जिसके बारे में सारी दुनिया के साइंसदान कहते हैं कि इससे बेहतर दूध बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है। वो वाला दूध उसी दिन माँ की छातियों में पैदा होता है जिस दिन बच्चा दुनिया में आता है। आपने कहा इवॉल्व हुआ है ये, अबे इवॉल्व होना इतना अक्लमंद है इवोल्यूशन कि वो खुद बखुद ये सब चीजें कैसे समझ रही है। आपकी इस तहकीक से साइंसदान मुतासिर होंगे, लम्स यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा मुतासिर होंगे, खुदा उठा के जहन्नम में फेंक देगा और कहेगा बेशर्मो बेगैरतो, तुम पैदा हुए और पैदा होते ही तेरी माँ की छातियों में मैंने दूध पैदा किया और तेरी माँ के दिमाग में बेपनाह मोहब्बत पैदा की। ये मोहब्बत भी इवॉल्व होने का नतीजा है। आप कह सकते हो कि अल्लाह माँ के दिल में औलाद से मोहब्बत एक नेचुरल है, तो तेरी पैदा करदा नहीं है। अल्लाह कहेगा अगर ये नेचुरल होती तो मछलियों के दिल में भी औलाद की मोहब्बत होती, सांपनी के दिल में भी औलाद की मोहब्बत होती। ये मैनेजमेंट अल्लाह की तरफ से है। जिन जानवरों की नस्लें बहुत तेजी से बढ़ती हैं उनमें माँ की ममता नहीं होती ताकि ग्रोथ पे कंट्रोल रहे। जिन जानदारों की नस्लें कम हैं उनमें माँ की ममता है। तो इंसान की माँ के दिल में जो मोहब्बत है ये ऑटोमेटिकली नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। तो बच्चे पर अल्लाह का सबसे पहला एहसान माँ की छातियों में दूध, और उसे पालने के लिए एक इंतहाई मोहब्बत वाली शख्सियत चाहिए थी। वो शख्सियत अल्लाह ने किसकी सूरत में दी? माँ की सूरत में, जो सारी जिंदगी इसको रोटियां पका पका के खिलाती है, कभी थकती बोलो नहीं। ऐसी मोहब्बत इज्जत मिलती है घर के अंदर। तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उल्लू बना देगा आपको, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा प्रोफेसर ये बकवास कर रहे हैं कि खुदा किधर है, खुदा किधर है। नहीं छोड़ेगा अल्लाह। फिर हमें जरूरत थी देखने के लिए आंख, खुदा ने माँ के पेट में क्या लगा दी? आंख लगा दी। अब्बा ने जो सहरा में चंद चीजें पैदा की ना वो 4-6 होंगी, हमें तो 20 चीजों की जरूरत थी। देखने के लिए 2 डिजिटल कैमरे चाहिए थे हमें। ये जो डिजिटल कैमरा है ना, ये इंसानी आंख को देखकर बनाया गया है। ये कैमरा खुद ब खुद नहीं बन सकता, जो कॉपी है, जो ओरिजिनल है, वो करोड़ों साल में खुद कैसे बन गया? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैंने साइंसदानों से सुना है कि ये जो डिजिटल कैमरा है ये इंसानी आंख की कॉपी है। साइंसदानों ने आंख को देख के इजाद किया। ये हर चीज ही इस कायनात में पहले से नजीर थी, मिसाल थी, उसको देख के बनाई गई है। इजाद कुछ भी नहीं है, कॉपी है सब कुछ। समझता नहीं है ना बात को? तो कमाल की बात है कि कॉपी जो है वो खुद ब खुद नहीं बन सकती, और जो ओरिजिनल है वो खुद ब खुद, और ओरिजिनल जैसी अभी तक बना ही नहीं है कैमरा, क्योंकि इस कैमरे को पावर चाहिए करंट से, बिजली से। ये कैमरा पावर लेता है रोटी से, अंडे से, मछली से, दोनों में कोई मुमासलत मिलती नहीं है। ये कैमरा बना है प्लास्टिक से, शीशे से। ये कैमरा बना है माँ के पेट में, माँ ने रोटी खाई उससे बना, माँ ने पराठे खाए उससे बना, माँ ने पिज्जा खाया उससे बना, माँ ने गोश्त खाया। मुख्तलिफ चीजें खाई जा रही है, बन एक ही चीज रही है। नहीं यार खोपड़ी में मेरा बता रहा हूं, मैं समझ लो जो कहना चाह रहा हूँ, बच्चे खवाओ नहीं मेरे। ये जो कैमरा हम बनाएंगे प्लास्टिक है, इसमें ग्लासेस है, कुछ लोहा होगा, कुछ तांबा होगा, वगैरह वगैरह। जब भी बनाना होगा ये सारी चीजें चाहिए होंगी। ऐसा नहीं कि आप साइंसदान को कुछ भी लाके पकड़ा दो यही बने, ऐसे सॉफ्टवेयर अब तक इजाद नहीं हो। ये वाला जो कैमरा बनता है ना, वेजिटेरियन गोश्त नहीं खाते, क्या खाते हैं? सब्जियां। उनके भी ये कैमरा बन रहा है। उस सब्जी से अल्लाह क्या बना रहा है? गोश्त। हिंदुओं में 90 साल तक लोग चल रहे होते हैं गोश्त खोर, सब्जी खोर होते हैं। वो केले खा रहे हैं, वो मकई खा रहे हैं, बन क्या रहा है? गोश्त बन रहा है। आंख, नाक, दिल, दिमाग, जिगर। इसी से याद आया, ये जो कीटो डाइट के नाम पे बहुत ज्यादा मुबालगा आराई हो रही है ना, कि मांस जो है वो गोश्त खाए बगैर नहीं बनता। हम तो गोश्त खोर हैं मानते हैं, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है।
कुछ लोगों का कीटो डाइट का बिजनेस चल रहा है, उन्होंने कीटो पे सबको लगा दिया, नेचुरल नहीं है ये, हर चीज में इतदाल में रहा करो। एक डॉक्टर से मैंने पूछा ये क्या हम सब्जी खाएंगे तो गोश्त नहीं बनेगा? उसने कहा जो भैंस है ये गोश्त खा के गोश्त बनाती है? बड़ी जबरदस्त दलील। ये तो बचपन से लेके मौत तक घास खाती है, बनता क्या है? इतना इतना गोश्त तो हमारा भी बन सकता है। गोश्त खाया जरूर करो, लेकिन ये नहीं होता कि जो इन लोगों ने आज बिल्कुल ही, एक हिंदू लोगों ने गोश्त को जिंदगी से निकाल दिया, वो भी गलत, और कुछ कीटो वालों ने क्या किया, बस प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं लेनी है, इसको निकाल ही दो, ये भी गलत है। तमीज से जैसे सारी दुनिया चल रही है ऐसे चलो, समझ रहे हो? तो मैं क्या कह रहा था, माँ के पेट में जो कैमरा बनता है ना आंखों का, जो भी खाओगे बनेगा, आंख बनेगी, नाक बनेगा, दिल। कोई माए पराठे खा रही है, बच्चा फिर भी वही पूरी वही आंख नाक कान लेके पैदा हो रहे हैं। कुछ माए गोश्त खा रही हैं, कुछ खजूर खा रही हैं। हमारा रब ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिया उसने कि आंख को जो चीज बनने के लिए चाहिए वो पराठों से निकाल लेगी। समझता है कि नहीं समझता? तो कमाल की बात है, ये वाला कैमरा जो इतना पेचीदा नहीं है, ये तो खुद ब खुद बन सकता है, और 100% समझ लिया है। आंख को अभी तक 100% समझा नहीं गया है, वो खुद ब खुद बनी है। भाई झूठ बोलने से पहले थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लिया करो। डार्विन फेंक के चला गया, तुम उसको बैठ के क्या कर रहे हो, पकड़ रहे हो। तो अल्लाह नहीं छोड़ेगा। ये इस्लाम मेरे बाप का दीन नहीं है, ये अल्लाह का दीन है। ये एथियस्ट लोग समझते हैं कि हम लोग जब ये बातें कर रहे हैं अपनी दुकानें चमका रहे हैं। हमारी क्या दुकान चमकेगी, तुम अल्लाह को मानो नहीं मानो, हमारा क्या लेना देना इससे। तो अल्लाह नहीं छोड़ेगा ये जो आपकी तहकीकात है। तो अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा, गुठली को भी फाड़ देता है और दाने को भी फाड़ देता है। फिर क्या करता है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, उस मुर्दा से जिंदा पैदा करता है। ये कैसी इवॉल्व हो गई चीजें भाई। अंडा मुर्दा होता है, कोई जान उसमें नहीं होती, जर्दी है, सफेदी है, ऊपर एक झिल्ली है और एक छिलका है। ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए उसमें, मुर्गी बैठी 21 दिन और उससे फड़फड़ाता हुआ चूजा निकल गया। पहले दिन चूजा निकल के, अजीब, बिल्कुल ऐसा लगता है पहले दिन से ही सीखा हुआ है सब कुछ। आपको पता है कंप्यूटर में दो चीज होती है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, ऐसा ही है ना? हार्डवेयर बनाना मुश्किल है या सॉफ्टवेयर? अब है कंप्यूटर में, अस्तगफिरुल्लाह भाई, कंप्यूटर में जो है हार्डवेयर होता है ना, हार्डवेयर का मतलब ये पावर प्लग है और ये हार्ड डिस्क है और ये इसका शीशा है और ये इसके बटन है। सॉफ्ट ये आसान है बनाना। कीबोर्ड आप किसी भी बंदे को दे दें, बना के दे देगा। असल चीज है उसका सॉफ्टवेयर। जैसे एक आदमी की बाइक थी, पूरा मोहल्ला इस्तेमाल करता था और हर आदमी आके कहता पेट्रोल में डाल दूंगा, बाइक दे दो मुझे। तो वो मना कैसे करता, वो पेट्रोल तो डाल ही देगा। एक दिन उसको गुस्सा आया, एक बंदा आया, बाइक दे दे, पेट्रोल में डाल दूंगा। उसने डब्बा लेकर आया, बोला इसमें पेट्रोल डाल के चला ले। तो खाली पेट्रोल नहीं होता, बाइक में पूरा सिस्टम होता है, सिस्टम नहीं होता, सिस्टम होता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर कीबोर्ड का नाम नहीं है, उस स्क्रीन का नाम नहीं है, उस माउस का नाम नहीं है। असल तो वो जो प्रोग्रामिंग उसके अंदर की है वो बड़ा खानदानी काम है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो हजार लाखों साल के बाद जाके इंसान यहां तक पहुंचा है। असल वो कमाल है, समझते हो कि नहीं समझते? और जब वो अंदर के सॉफ्टवेयर या विंडोज सही होती है तो फिर कंप्यूटर चलता है, तो उसको चलना कहते हैं। मेरा कंप्यूटर खराब हुआ ना, चल नहीं रहा था, एक बंदे ने कहा नीचे बेरिंग लगाओ, धक्का दो, चलेगा। ये वाला चलाना आसान है, लेकिन जो इसके वायरस आए हुए हैं वो खत्म हो जाए, ये आसान थोड़ी है। ये तो इंजीनियर्स होते हैं जो ये काम करते हैं। आजकल तो नहीं कर रहे, आजकल तो इंजीनियर लोग कुछ और कर रहे हैं, समझ रहे? तो ये भी क़यामत की अलामात में से। तो अब क्या है, सॉफ्टवेयर मुश्किल है, हार्डवेयर क्या है, आसान। एक हार्डवेयर है अंडा, इसमें जर्दी बना दी, उसमें सफेदी बना दी, ऊपर झिल्ली बना दी। ये भी खुदा की कसम बहुत मुश्किल है। दाना पानी मुर्गी खाती है और निकालती क्या है, अंडा। अल्लाह ने ऐसी मशीन बना दी लेकिन एक इससे ज्यादा मुश्किल है अंदर का सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ये कि इसको जब इतनी हीट मिलेगी 21 दिन तक, तो इसमें ऐसे प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि ये चोंच भी बनेगी, इसमें आंख भी बनेगी, दिमाग भी बनेगा, गुर्दे भी बनेंगे और इसके अंदर पर भी बनेंगे और मैदा भी बनेगा। और फिर इसके अंदर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर बन के आ जाएगा। नहीं यही बात, ये सॉफ्टवेयर बनेगा, अंडे के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर है। 21 दिन में इस सॉफ्टवेयर से ये सॉफ्टवेयर अंडे को चूजा बना के एक हार्डवेयर बना देगा। और उस हार्डवेयर के अंदर फिर एक सॉफ्टवेयर होगा जिसे ये पता होगा मेरी माँ कौन है, मुझे खाना क्या है, मेरा दोस्त कौन है, और बिल्ली को देख के चीखेगा। उसे पहले दिन पता होगा कि मेरा दुश्मन कौन है। नहीं आई, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर पैदा कर रहा है, सॉफ्टवेयर से क्या पैदा कर रहा है, हार्डवेयर। इसी को अल्लाह कहता है मुर्दे से जिंदा और जिंदे से मुर्दा पैदा कर। आज तक किसी सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर पैदा नहीं हुआ
और ना हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर पैदा हुआ है। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं निकाल के दे देता, ठीक है, कंप्यूटर को हार्डवेयर देना पड़ेगा, उस पर प्रिंट करके दे देगा आपको, कागज आपने ही लगाना है। ऐसा नहीं होता कंप्यूटर कागज भी निकालना शुरू कर दे, अगर निकालेगा भी तो अंदर आपको कागज का मटेरियल डालना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब में एटीएम कार्ड ना खुद ही बन के आ जाता है। मैं तो हैरान हो गया है। खैर अब ये नई लंबी बहस है, बहुत एडवांस जा रहा है सऊदी अरब, इतना एडवांस दुनिया में, दीन में 20-10 रकत खत्म हो गई, समझ रहे हो? तो दुनिया में सऊदी अरब कहाँ जा रहा है एडवांस, दीन में थोड़ा पीछे हो गया है। अब लोग उस जो पीछे हो गया है ना दुनिया में, उसके हवाले दे देंगे। तो हरम में 10 रकत तरावी होती है, अबे हरम में 1400 साल से क्या हो रहा था। खैर मैं इस इख्तलाफी मसले पे भी इस आयतों को नहीं कुर्बान करूंगा। तो अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह। पहले अल्लाह ने क्या कहा, मैं दाने और घुटली को फाड़ के तनावर दरख्त बनाता हूँ, मैं मुर्दा से जिंदा को निकालता हूँ। उसके बाद अल्लाह पता है क्या कह रहा है, ज़ालिक कहते हैं हाथ से इशारा। डार्विन कहता है ना, डार्विन तो कहता भी नहीं, जो डार्विन की पूजा करने वाले लोग हैं मुल्हिद, कहते हैं कहाँ है अल्लाह, दिखाओ क्यों नहीं, दिखाओ, नजर क्यों नहीं आता, बार बार ये कह रहे हैं ना, आता क्यों नहीं। एक मुल्हिद की मैंने तकरीर सुनी, कहते हैं अल्लाह के बता देना मैं हूँ, मान लेंगे क्यों नहीं आ रहा, छुपा हुआ क्यों बैठा है। तो ऐसे मौके पे हाथ से इशारा करना पड़ता है, ये रहा, कहते हैं नहीं। अबे तुम्हें हर बात मिसाल से समझानी पड़ती है। देखो वही रेगिस्तान वाली मिसाल पे आते हैं, अब्बा सब चीजें रख के जा रहे थे, आप कह रहे हो खुद ब खुद हुआ है। किसी ने कहा तेरा बाप ये काम कर रहा है, आप कह रहे हो मेरा अब्बा नहीं, मैं नहीं मानता, कहाँ है मेरा अब्बा, कहाँ है मेरा अब्बा। तो कोई अब्बा को निकाल के ले बोला ये रहा, ठीक है, ये तेरा बाप है, देख ले इसको, अब भी नहीं मानेगा। बिल्कुल वही अंदाज, क्योंकि कुरान बलागत की किताब है ना, नेचुरल वे में समझाता है। साइंसी अफलातूनिया और बुकरातियां पेचीदा मसाइल नहीं रखता। साइंस का मुनकिर नहीं है, कुरान से तो साइंस साबित है और साइंस से कुरान साबित है। लेकिन एक साइंस वो होती है जो सही खोपड़ी इस्तेमाल करके इंसान सीखता है, और एक वो होती है जो आपको खुदा से दूर रह जाती है। जैसे मैंने बताया था ना, आजकल डॉक्टर हैंड प्रैक्टिस को भी प्रमोट कर रहे हैं, कह रहे इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो भाईजान आप नुकसान की डेफिनेशन किसे कहते हो? अगर कोई लड़कों से बदफेली करता है, मेडिकली नुकसान उसमें भी नहीं है, लेकिन मेंटली बेड़ा गर्क। लूत अलैहिस्सलाम की कौम लड़कों से बदफेली करती थी, उन्हें लड़कियों में हाजत नहीं, तो नामर्द हो गए ना। अब नामर्दी को आप बीमारी ना समझो तो फिर आपकी खोपड़ी खराब है। क्या ख्याल है भाई? अल्लाह ने शहवत पूरी करने के लिए औरत को पैदा किया, आप हाथ से कर रहे हो तो मेंटली आप क्या हो जाओगे? डिस्टर्ब हो जाओगे। आपके जब बीवी से रिलेशन में फर्क पड़ेगा, इससे ये हो नहीं सकता कि ना पड़े। आदत गुटकी की आदत हो जाए